Assalamu alaikum. Okay, Avinash and team, I hope everybody is ready. So students are also coming. So let's start the session. And, let me start the session with the vision of Google Developers Student Club. The vision is helping students bridge the gap between theory and practices. So actually students need to find out the solution to the real world problem of our local society and our country, right? So this is the main global vision of Google Developers Student Club. So actually students are, as I always say, that they are the enabler. Every innovative idea in the world usually comes from students. So throughout the semester, this semester and the previous semester, this year we have had a lot of sessions, industrial speakers and trainers also delivered the workshops, and we are also having this app development bootcamp, the third session or the third day. And obviously after Ramadan, we are also planning more guest speaker sessions, other technical sessions apart from this bootcamp as well. So this bootcamp will continue after Ramadan as well. And the most important thing is that attendance sheet will be circulated on the Meet chat repeatedly from time to time. So please make sure to mark your attendance during the session. And immediately after the session, attendance sheet will be locked. And you will be receiving a feedback email also after this session. So, and let me tell you about the continuous education, as these workshops and the boot camps are actually part of your continuous education. So continuous education is for improving the lives of others and for your learning as well, and for your community and the world better than you find it, right? So education is the most powerful weapon that you can use to change the world. And we teachers can help open the door, but actually you must enter it yourself, right? So here are we, students are the trainers, and I welcome Avinash and his team members. His team members are Wajahat and Saad, who will be delivering the session today. So over to you, Wajahat and Saad and Avinash. Please continue the session. Okay, so today is our third session of the Factor, and today Saad and Wajad will be continuing about the APIs, and we will be developing a real-time app about COVID. So all things about APIs, what are APIs, how we use them in Flutter, how can we develop an app using API data. So all things will be covered in this session. My team members Saad and Wajad will carry on this. Over to you, Saad and Wajad. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेलो, Yes, Wajad. आवाज़ आ जी रही है? सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे APIs के बारे में। द API stands for Application Programming Interface. This is basically the messenger between your app and the server. Like जैसे आप समझ लें, ये एक वेटर की तरह से काम करता है एक रेस्टोरेंट में। आप वेटर को एक रिक्वेस्ट करते हैं, वेटर आपका पीछे रेस्टोरेंट में जाके जो भी होता है वो आपका ऑर्डर प्रिपेयर करता है, फिर वहाँ से जो प्रिपेयर होता है वो वापस आपको ला के देता है एज अ रिस्पॉन्स। तो यही काम हम APIs का अपनी ऐप्स में करते हैं। APIs हम दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि अपना बैकएंड होता है हमारा, वो हम कहीं अपलोड करते हैं, उसकी APIs को हम हिट करते हैं अपनी ऐप से। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है थर्ड पार्टी APIs। ये क्या होता है कि हम एक मतलब थर्ड पार्टी हमें API प्रोवाइड करती है,
और हमें साथ में डॉक्यूमेंटेशन देती है कि हम किस तरह से एपीआई को हिट कर सकते हैं और हमें किस तरह का वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज जो है हम कोविड की एपीआईज को हिट करेंगे एज ए मतलब थर्ड पार्टी एपीआईज को। अच्छा, तो हम जो है ये वाली एपीआई हिट करेंगे, इसकी लिंक जो है आपको सेशन के बाद इंशाल्लाह भेज देंगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें, ये वाली लिंक है https://api.covid19api.com। ठीक है, ये इसकी बेस एपीआई है और इसके आगे अगर आप ये स्लैश डाल के समरी डाल रहे हैं आपके पाथ में तो आपके पास रिस्पॉन्स आता है। अब जैसे अच्छा, एपीआईज को हम टेस्ट जो है अक्सर पोस्टमैन से करते हैं, इससे मतलब काफ़ी आपको आसानी हो जाती है कि देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो लाइक इसको अगर हम हिट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है जिसके अंदर एक ग्लोबल, एक ये आईडी और मैसेज है, फिर एक ग्लोबल है जिसमें ओवरऑल आपके ओवरऑल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें आपके पास न्यू कंफर्म्ड केसेस, टोटल कंफर्म केसेस, डेथ्स और रिकवर्ड और लास्ट डेट जिस डेट को इन्होंने ये अपडेट किया है, एक ये आ रहा है। और दूसरा फिर जो है आपके पास कंट्रीज का एक एरे आ रहा है जिसके अंदर आपके पास कंट्री वाइज जो है सारे कोविड की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हम आज ये वाली एपीआई को हिट करेंगे और इस तरह की जो है हम ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम ऊपर ग्लोबल डिस्प्ले करेंगे और नीचे जो है कंट्री वाइज हम केसेस थोड़े डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे या डायरेक्ट हम पहले एपीआई रिक्वेस्ट देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, फ्लटर के अंदर या बाकी भी जो हम ऐप डेवलपमेंट वगैरह करते हैं उसके अंदर बेहतर ये होता है कि हम अपनी यूआई को अपने लॉजिक से जो है अलग करके रखें। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं उल्टे हाथ पे मॉडल्स का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है और यूआई का अलग फोल्डर है। तो अभी हम मॉडल्स के अंदर http request.dart है उसकी अंदर हैं। अच्छा, अभी की क्लास हमने बना दी है http रिक्वेस्ट की जिसके अंदर फंक्शंस होंगे जो हम हिट करें, जो हम कॉल करेंगे अपनी यूआई वाली स्क्रीन से। ठीक है, अच्छा, अब ये पहली वाली जो है गेट समरी का एक फंक्शन है, ये हमें फ्यूचर रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर एसिंक है। अच्छा, अब ये एसिंक और अवेट क्या चीज़ होती है, ये होता है हम अवेट उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें रिस्पॉन्स फ़ौरन ना मिल रहा हो। लाइक जैसे हम जब कोई सी या C++ में हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें रिस्पॉन्स फ़ौरन मिल रहा होता है। अब जैसे ये वाली जो हैं जिसमें या तो हम अपना इंटरनेट पे यूज़ कर रहे होते हैं या हम कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका कैमरा हो गया या आपका लोकल डेटाबेस है, यहाँ पे क्या है हमें रिस्पॉन्स फ़ौरन नहीं मिलता, हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम अवेट यूज़ करते हैं। इस अवेट के लिए हमें अवेट को यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन में यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ता है और फंक्शन जो है फिर रिटर्न करता है आपका फ्यूचर। और ये आपका जो है वो रिटर्न किस तरह का करेगा, ये कोविड की क्लास है, ये आपको साथ बाद में एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने जो है अपनी एपीआई को एक वेरिएबल में डाल दिया, API COVID-19 API.com, जो आपको मैंने वहाँ दिखाई थी पीछे। और एक ये हमारे पास है समरी बाय कंट्री का एक हमने एरे ले लिया है जिसके अंदर जो सारे कंट्री की जो डिटेल्स आ रही थी हम वो सब इसमें स्टोर करेंगे। अब इसके बाद जो है हम URL का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम URI.https का एक वो फंक्शन है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक एपीआई अपनी डाल रहे हैं जो हमारी एक बेस एपीआई थी, जो हमारा डोमेन था बेसिकली। और इसके आगे जो जो हमें पाथ पे हिट करना है हमने वो पाथ डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये हम ट्राई कैच का ब्लॉक डालते हैं। ये आप लोगों ने ऊप वगैरह में पढ़ा होगा कि हम ये ट्राई इसलिए डालते हैं कि इन केस अगर कोई एरर आ जाए, लाइक अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा या एपीआई सही नहीं है तो आपके पास वहाँ से एरर रिटर्न होता है। तो इन केस वो एरर रिटर्न हो तो वो हमारे पास यहाँ पे कैच हो जाता है, आपके पास आपकी ऐप इससे क्रैश नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम रिस्पॉन्स को हम अवेट कर रहे हैं http.get से। अच्छा सॉरी, हाँ, http का रह गया। http जो है ये एक हमें ये pub.dev से हमें http का जो है पैकेज इंपोर्ट करना
पड़ता है, जिसके बाद जो है हम HTTP की रिक्वेस्ट क्या HTTP की हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है हम आपका गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट दो चीज़ें भेज सकते हैं, जो मेनली जो ये दो चीज़ें हम भेजते हैं। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि हम अपने यहाँ कोड में pubspec.html pubspec.yaml की फाइल है, यहाँ पे हम ये डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे HTML का यहाँ आप मतलब आते हैं pub.dev के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल्स दी होती है कि आपको कौन सा वर्जन आप लेटेस्ट है जो आप डाउनलोड करेंगे, तो वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ वो पेस्ट करके रन कर देते हैं। अच्छा, ये दूसरा इंटेल का जो है, ये जो हमने डाला हुआ है, ये डिपेंडेंसी जो हमने डाली हुई है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर डेट्स के फॉर्मेटिंग के लिए। ये भी बाद में आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, HTTP का ये हमने जब डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली तो फिर हमें अपने पास इसको इंपोर्ट करना होता है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया http.dart को एज HTTP। तो अब इसके बाद जो है हम http.get की हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये वाली जो URL थी हम ये यहाँ पे डाल रहे हैं। अब इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो इस तरह से आता है आपके पास, पूरा ये चीज़ जो है ये पूरे आपके रिस्पॉन्स में आती है। हमें इसमें रिस्पॉन्स की बेसिकली सिर्फ बॉडी चाहिए, तो उसको हम जेसन में डिकोड करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास वो जेसन की फॉर्मेट में ये वाला रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके बाद हाँ, हमारे पास इसके अंदर दो मेन चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, एक ये ग्लोबल और एक ये कंट्रीज़। तो एक यहाँ से हमने जेसन रिस्पॉन्स के अंदर हमने पूरा वो रिस्पॉन्स ले लिया था। अब हम ग्लोबल समरी के लिए जेसन रिस्पॉन्स और ग्लोबल डाल देंगे और कंट्रीज़ के लिए जेसन रिस्पॉन्स कंट्रीज़ डाल देंगे। ठीक है। इसके आगे अब जो ये क्लास में जो जा रहा है और जो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये आपको आगे साथ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है। अच्छा अच्छा, तो जैसे वजाहत ने आपको HTTP के बारे में बताया तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो है रिस्पॉन्स तो देख लिया, हमारे पास रिस्पॉन्स API से ये आ रहा था, इसमें अंदर एक ग्लोबल था जैसे वजाहत ने आपको बताया और एक कंट्रीज था। तो ये तो हमें चाहिए ये दो चीज़ें, एक ग्लोबल चाहिए और एक कंट्रीज चाहिए। अच्छा, अब रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन अब उसको हमें ऐप में कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लोबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यू कन्फर्म्ड, टोटल कन्फर्म्ड, न्यू डेथ्स एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास में हमने कोविड क्लास बना ली, उसके अंदर कन्फर्म केसेस और ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्स में आ रही हैं। ग्लोबल वाले में तो ये 6 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंट्रीज भी चाहिए। सही है, तो कंट्रीज के लिए हमने क्या किया है, ये तो ग्लोबल के लिए 6 चीज़ें आ गए, ये जो बीच में डाली हुई है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग कंट्री डाली हुई है। सही है, और डेट टाइम डाला था। अच्छा, डेट टाइम और जो डेट है और कंट्री है वो हमारे पास आ रही है कंट्रीज के एरे के अंदर, मतलब ये कंट्रीज है और कंट्री बाय कंट्री यहाँ पे हमें पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अफगानिस्तान है। सही है, इसका कंट्री कोड AF है। फिर हमने इसका ये जो ग्लोबल के अंदर भी चीज़ें थी, 6 चीज़ें वही सेम चीज़ें हो गई, कंट्री कोड हो गया और डेट हो गए। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें अपनी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बता दिया कि हमें ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें रिट्रीव करनी और ऐप के अंदर इस्तेमाल करनी होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है कि जाहिर सी बात है, जब जेसन जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, तो हमें अब क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें अपनी क्लास के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये मैप के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, तो ये कंस्ट्रक्टर समझे आप। सही है, तो ये मैप के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग यूज हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, मतलब कंट्री नेम भी आएगा हमारे पास। अच्छा, और इंट भी आएगा और डेट टाइम भी आएगा। डेट टाइम एक टाइप है
जो फ्लटर के अंदर डेट जितनी भी होती है वो डेट टाइम हैंडल कर रहा होता है, टाइप जो है होता है। तो इसलिए हमने एक तो स्ट्रिंग डाल ही दिया, बाकी डायनामिक भी डाल दिया ताकि वो इंट भी हैंडल कर ले, इंटीजर भी हैंडल कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टोटल डेथ्स, न्यू डेथ्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटीजर में है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप देख रहे होंगे दिस डॉट कंट्री इज इक्वल्स टू जेसन कंट्री कोड। अब हमारे पास जो है कंट्री कोड आप देख सकते हैं कि ये कंट्रीज के अंदर जो स्पेसिफिक कंट्रीज है ना, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ये वाली कंट्रीज हो गई सारी जो हैं, इसके अंदर कंट्री कोड आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये कंट्री कोड उठाया और ये कंट्री कोड जेसन के अंदर डाला, ठीक है, और कंट्री के अंदर सेव करके, मतलब वेरिएबल का नाम है उससे कंफ्यूज नहीं होएगा। अच्छा, इसमें एक ये है कि जो एक हम ग्लोबल उठा रहे हैं और एक कंट्रीज का पूरा जो है एरो उठा रहे हैं। तो ग्लोबल के अंदर आप देख रहे होंगे कंट्री तो है नहीं, कंट्री कोड तो है नहीं, सही है। तो हमने इसको इस तरह से हैंडल किया हुआ है कि अगर वो क्या कहते हैं कंट्री कोड नल है, ये जो आप 2 क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपके पास नल आ रही है, जाहिर सी बात है ये जो ग्लोबल है इसके अंदर ये तो चीज़ मौजूद ही नहीं होगी, तो वो ऑब्वियसली नल होगा, ठीक है। तो नल होगा तो हमने बस इसको ग्लोबल स्टोर कर दिया इसके अंदर, सही है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू कन्फर्म्ड है, टोटल कन्फर्म, न्यू रिकवर्ड, न्यू डेथ्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं ये ग्लोबल के अंदर भी और ये कंट्री के अंदर भी है। तो हमने एज इट इज़ उठा के डाल दिया, ठीक है। और ये हमने 2 इंट इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो है कभी कभी जो ना ये जो हमारा रिस्पॉन्स आता है ना, ये होता है कभी कभी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमें श्योरिटी चाहिए होती है कि हम इंटीजर ही रिसीव कर रहे हैं, तो हमने 2 इंट कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, और अगर ये नल होता है, वो हमने दोबारा जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर ये नल है तो हमने इसको 0 कर दिया। सारी ज़्यादा हम नल तो नहीं डाल सकते ना न्यू कन्फर्म के अंदर, तो हमें या तो अगर वो नल आ रहा है तो हम उसको 0 बना देंगे, ठीक है, 0 डिक्लेयर कर देंगे उसमें, ठीक है। बाकी डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट को पार्स किया हुआ है ताकि वो अपने फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाए, जो हमने ऐप के अंदर फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आ रही है, ठीक है, ये रही। अच्छा, ये आप देख लोगे कि कंट्रीज में तो आ रही है डेट, लेकिन इसके अंदर ग्लोबल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया हुआ है कि हमने डेट टाइम डॉट नाउ फ्लटर का एक फंक्शन होता है, एक फीचर है, तो हमने डेट टाइम का ऑब्जेक्ट यूज करके डॉट नाउ कर दिया। तो वो उस वक्त की करंट डेट जो होगी, जैसे अभी जो 30 चल रही है अप्रैल और 3:22 PM हो रहा है, तो वो उस वक्त वो जाके डेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो covid.dart की चीज़ें ये तो यहाँ पे खत्म हो गई। मतलब ये हमने क्या कर दिया, हमने जो रिस्पॉन्स है उसको अपनी ऐप के स्ट्रक्चर के अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसको आगे क्या कहते हैं UI के अंदर कैसे भेजेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं main.dart पे आ गया। तो ये main.dart पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या कहते हैं स्टेटलेस विजेट है, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमने एक चीज़ फ्यूचर बिल्डर यूज़ की है। अच्छा, फ्यूचर बिल्डर क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर, इसके अंदर एक फ्यूचर होता है और एक बिल्डर होता है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि जो बजाज में जैसे आपको बताया था कि ये एक गेट समरी वाला फंक्शन है, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एक एसिंक फंक्शन था जिसके लिए हम वेट करते हैं, जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता उसके लिए हम वेट करते हैं, ठीक है। अब आपको तो ये पता चल गया कि ये रिस्पॉन्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़र को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। यूज़र को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई रिस्पॉन्स आ गया या नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम फ्यूचर बिल्डर यूज़ करते हैं ताकि हम फ्यूचर के अंदर अपना जो डेटा मंगवा रहे हैं, जो APIs हिट कर रहे हैं जो भी फंक्शन के थ्रू, उसके लिए तो डेटा आ जाएगा, फ्यूचर में आएगा, ठीक है। ये फ्यूचर है, सही है। गेट समरी वहाँ पे कॉल हुआ है जो इस क्लास का फंक्शन है, एसिंक फंक्शन है, तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ बिल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक स्नैप होता है, ठीक है। स्नैप हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट करें अगर अभी जना डेटा आपके पास रिसीव नहीं हो, अभी जना APIs आपने हिट तो कर ली लेकिन अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है, ठीक है। आपने जैसे उसमें देखा होगा अपनी ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसमें ये होता है कि आपको एक लोडिंग का नज़र आ रहा होता है, लोडिंग होते हुए नज़र आ रही होती है। तो वो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास पूरा डेटा रिसीव जब तक नहीं होता ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि एक हम जो ना यूज़र को एक ये शो कर सकते हैं। सर्कुलर इंडिकेटर क्या करता है
कि जब आपके पास डेटा लोड हो रहा होगा ना, अभी तक आया नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो इस तरह से लोड होते हुए दिखा देगा कि लोड होगा, ताकि यूजर को पता चल जाए कि हाँ कुछ अभी आने वाला है। ठीक है। अच्छा, तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि स्नैप डॉट कनेक्शन स्टेट से, सही, अगर कनेक्शन स्टेट वेटिंग में है, वेटिंग मीन्स कि अभी तक आया नहीं है डेटा, सही है, वेट कर रहा है वो, उसके बाद अभी रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, एक सेंटर में हमने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर कॉल कर दिया, जो वो लोडिंग दिखा रहा होगा यूजर को। ठीक है। जैसे ही अब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा ना, आपकी ऐप के अंदर एडजस्ट हो जाएगा आके, ठीक है, इसके अंदर आके पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स कंडीशन आपकी चल जाएगी। अच्छा, एल्स कंडीशन में क्या है, अच्छा आप एक चीज और देखें, जो स्नैप है ना, तो इस जो जारी साहब है, जो आपके पास रिजल्ट आया है, ठीक है, वो आता है स्नैप डॉट डेटा के अंदर। ठीक है। स्नैप डॉट डेटा क्या है, अब आप फ्यूचर वापस देखेंगे, फ्यूचर था आपका, तो हमने जो है ये एपीआई यहाँ से हिट की थी, और क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ से हमने ना एक दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक इसको ग्लोबल में, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे भी आप देखें दोबारा, एक ग्लोबल था और एक कंट्रीज था। ठीक है। तो ग्लोबल को हम ग्लोबल समरी में डाल रहे थे, ठीक है, और हम क्या कहते हैं, कंट्रीज को एक यहाँ पे हमने समरी बाय कंट्री लिस्ट बनाई हुई थी, उसके अंदर स्टोर कर रहे थे। ठीक है। और हम रिटर्न यहाँ पे क्या कर रहे थे, फ्यूचर से रिटर्न क्या कर रहे थे इस फंक्शन से, ग्लोबल समरी। ठीक है। तो आप जो फ्यूचर वहां से एक्सेस कर रहे हैं ना, ये जो है, ये जो आप एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ग्लोबल समरी। ठीक है। ग्लोबल समरी आपके पास जो ये है, ये ग्लोबल समरी है, और ये जैसे ही रिटर्न हो गई तो वो क्या कर देगा, अब ये वाली एल्स कंडीशन चलाएगा और स्नैप डॉट डेटा के अंदर आएगी। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये स्नैप डॉट डेटा के अंदर आता है, जो फ्यूचर रिटर्न होता है ना, आपने रिटर्न किया था वहां से। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमने अब हमें अपनी ऐप के अंदर यूआई के अंदर एडजस्ट करना है, अब यूजर को आपको शो करना है कि आपके पास डेटा जो आया है। ठीक है। उसके लिए हम आप दोबारा ऐप देखें, तो जिस तरह से ऐप बनी हुई है, तो उसके अंदर क्या है, आप देख सकते हैं ये ग्लोबल डेटा है। ठीक है। अभी तो हमने यही इसकी बात की ना, और हमने किसके अंदर जो ग्लोबल डेटा हमारे पास आ रहा था वापस HTTP से, ये जो ये रहा। ठीक है। अगर ये जो वापस आ रहा था, तो हमने उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया था, कोविड के ऑब्जेक्ट में। सही, एक हमने टोटल केसेस एक बना लिया था, स्नैप डॉट डेटा रिटर्न हुआ। और अब अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, एक जना दो अलग अलग डार्ट फाइल्स बनाई हुई है, सही है, वो यूआई के फोल्डर के अंदर। ठीक है। एक है ग्लोबल डिस्प्ले, जिसके अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, सिर्फ ये ग्लोबल वाली चीजें जो है ना, जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो केसेस हैं, डेथ्स हैं और रिकवरीज हैं जो भी हैं, ठीक है, वो हम इसमें शो कर रहे हैं। ठीक है। और ये बेहतर प्रैक्टिस होती है कि आप जो है ना ये सारी चीज़ें अलग अलग मैनेज करें, क्योंकि जब आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो आप क्या कहते हैं, जो बना रहे होते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह या वेब में। तो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर चीज़ अलग अलग फाइल में एडजस्ट कर दें इसको। ठीक है। हमने ग्लोबल एक अलग फाइल में डाला हुआ है, सही है। और आपको यहाँ पे एक साइज बॉक्स नजर आ रहा होगा। साइज बॉक्स क्या होता है, एक तो आपने यहाँ पे देखा ग्लोबल डिस्प्ले, ठीक है, ग्लोबल डिस्प्ले ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। फिर आपके पास एक डाला हुआ है कंट्री वाइज समरी। ठीक है। कंट्री वाइज समरी यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक जो चीज़ है ना, वो कंट्री वाइज समरी के अंदर आ रही है। लेकिन आप देख रहे हैं बीच में एक साइज बॉक्स डाला हुआ है। तो साइज बॉक्स ये होता है कि आपको अगर स्पेस देनी हो ना, एक विजेट होता है फ्लटर में, तो अगर आपको स्पेस देनी हो तो ये यहाँ पे आप साइज बॉक्स से दे सकते हैं। जैसे हमने हाइट 20 ली हुई है, इसको हम बढ़ा देंगे तो और गैप आ जाएगा इसमें। ठीक है। और हमने ये एक बात याद रखिएगा कि एक पूरा कॉलम के अंदर रिटर्न किया हुआ है, यानी कि ये पूरा एक कॉलम है नीचे तक। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, आप एक और चीज़ नजर आ रही है एक्सपेंडेड। अच्छा, एक्सपेंडेड क्या होता है, एक्सपेंडेड ये होता है कि अब ग्लोबल तो बन गया, ग्लोबल आपने डिस्प्ले करवा दिया, साइज बॉक्स यहाँ पे डाल दिया, अब जितनी भी नीचे तक कॉलम के अंदर हमने मेन कॉलम यूज किया है ना, कॉलम के अंदर जितनी भी स्पेस खाली है ना, तो वो क्या होगा, अगर आपको उसको यूज करना हो, जितनी भी रिमेनिंग स्पेस को आपको यूज करना हो, वो आप एक्सपेंडेड के थ्रू कर लेंगे। जितनी भी खाली है ना जगह, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक्सपेंडेड से, एक्सपेंडेड विजेट से। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्लोबल डिस्प्ले में हम यूज कैसे कर रहे हैं उसको। सबसे पहले तो हम आप एक बात यहाँ पे देखें, जो ऊप में भी आपको पता होगा कि जिस तरह पास करते थे हम। ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल डिस्प्ले
क्या कहते हैं, एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या थे, आप याद करें कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, ग्लोबल सॉरी, ये जो इसके अंदर लिस्ट ये रिटर्न हो रहा था, ग्लोबल समरी रिटर्न हो रही थी, ठीक है, तो हमने इसके अंदर ये पास कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जाहिर से जब पास किया है तो हम यहाँ पे अपने एक हमने वेरिएबल ले लिया कोविड डिस्प्ले आइटम, सही है, उसके अंदर रिसीव कर लिया, ठीक है। तो उससे हम अब जो आगे इस फाइल के अंदर जो है ना इस चीज़ से एक्सेस करेंगे कोविड डिस्प्ले आइटम, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है मीडिया क्वेरी, ठीक है। मीडिया क्वेरी क्या होता है कि अब आपको पता होगा कि जब आप एक जो हमारे यूजर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है कोई आपके पास टैबलेट पे होता है, कोई 6 इंच के फ़ोन पे होता है, कोई 6.5 इंच के फ़ोन पे होता है, कोई और कम में होता है। तो ये एक मीडिया क्वेरी एक ऐसा फंक्शन है फ्लटर में जिसको हम कॉल करें, ये तो सिंटेक्स है डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, इससे हमें पता चल जाता है कि यूज़र का जो पूरी स्क्रीन का साइज है ना वो कितना है, ठीक है। अगर आप इसमें एमुलेटर पे देखें तो इसको पता चल जाएगा कि जो यूज़र का करंटली साइज अवेलेबल है ना वो कितना है, ठीक है। तो ये हमने साइज के अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी इसको याद रखेगा, मैं आपको इस पर वापस आगे बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यूआई जब डिज़ाइन कर रहे थे ना तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम इसमें देखें कि बना हुआ क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले देखें, एक तो यहाँ पे हमने ये एक यहाँ पे हेडिंग डिस्प्ले की हुई है, ठीक है, और ये हमने काम जो किया। अच्छा, इसके अंदर फिर ये चीज़ें न्यू कन्फर्म, टोटल कन्फर्म, न्यू डेथ्स, टोटल डेथ्स और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो हमने ये किस तरह से किया है, हमने एक कॉलम यहाँ पे रिटर्न कर दिया जो ये स्पेस ले रहा है पूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने रोज एडजस्ट कर दिए, ठीक है। एक रो ये हो गई, सही है, एक ये रो ये हो गई, ठीक है। ये आप दिख रहा होगा आपको कि कितनी रोज है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 रोज है, ठीक है। तीनों रोज के अंदर हमने क्या काम किया वो आप देखें। अच्छा, पैडिंग क्या चीज़ होती है, पैडिंग एक ये चीज़ होती है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि एडजस्ट करके बताऊंगा किस तरह से पैडिंग को देखते हैं, ठीक है। तो अभी इग्नोर कीजिएगा इसको। अच्छा, अभी जो है सबसे पहले हमने पैडिंग के अंदर जो है ना टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट क्या है, ये रहा ग्लोबल, और इसको इसका साइज 18 डाला हुआ है और बोल्ड है, सही है, वो सब हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक न्यू कन्फर्म्ड है, टोटल कन्फर्म्ड है, ये एक रो के अंदर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एक कॉलम है और ये रो है पूरी एक, ठीक है। अब रो के अंदर क्या हो रहा है कि हमने जो ना क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है बिल्ड कार्ड, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करें कि ये जो कार्ड के ये जो बना हुआ है ना, ये सारे एक तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये न्यू कन्फर्म्ड है, टोटल कन्फर्म्ड है, न्यू डेथ्स है, टोटल डेथ्स है, ये सारी जो है ना ये चीज़ें एक टाइप की हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक जेनरिक फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो है ना हमें बार बार सेम चीज़ लिखनी ना पड़े। तो ये फंक्शन ही होगा जो आपने ऊप के अंदर देखा होगा, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ये आप प्रैक्टिस करते होंगे इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए। तो हमने यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम किया हुआ है, सही। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है बिल्ड कार्ड, ठीक है। बिल्ड कार्ड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें एक स्ट्रिंग हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है, न्यू कन्फर्म्ड क्या है, हेडिंग है, ठीक है। हमने हेडिंग पास किया, हमने इंट नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अभी हम नीचे जाके देखते हैं किस तरह हमने भेजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे कलर्स है, सिलेक्टेड कलर। अब हम आप देखे होंगे कि इसको जो ना हमने ब्लू दिया हुआ है, इसको रेड दिया हुआ है, इसको ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें इसमें पास की हैं, क्योंकि 3 चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर जो ना, यानी कि कलर आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है जो टाइटल है, ठीक है, और एक आ रहा है जो नंबर है, ठीक है। अब वापस नीचे जाएं तो क्या है कि एक रो 1, रो 2, रो 3, अब हर रो के अंदर जो ना हमने 2 बिल्ड कार्ड कॉल किया है, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर देखें तो न्यू कन्फर्म्ड हमने क्या पास किया हुआ है, हेडिंग, और सेकंड पास क्या किया है, जो याद है आपको कि कोविड डिस्प्ले आइटम जो हमने ऊपर यहाँ पे आया था, हमने पास किया था मेन से,
तो हमने इसको क्या किया, हमने डॉट करके न्यू कन्फर्म्ड जो है ना, ये रहा न्यू कन्फर्म्ड, इस क्लास के जो वेरिएबल है इसको एक्सेस कर लिया और यहाँ पे पास कर दिया, ताकि ये जो है ना 652513 जो है ये डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने कलर्स डॉट ब्लू करके ब्लू कलर पास कर दिया, और सेम चीज़ है ना ये बिल्कुल रिपीट हो रही है। हमने सिर्फ क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और हमने सारी हेडिंग पास की है, हमने न्यू रिकवर्ड पास किया, टोटल रिकवर्ड, सही है, इस तरह से बस हैंडल किया है। तो ये रिपीटेशन है। और हमने बस एक इसमें ये है चीज़ सीखने वाली कि रिपीटेशन के लिए ना, अगर रिपीटेशन हो रही हो, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही हो, तो क्या करना होता है कि आप जेनरिक फंक्शन बना लें तो बेहतर है, ठीक है। आपका कोड फिर अच्छा माना जाता है, उसके हिसाब से आपको खुद भी आसानी होती है, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है इससे, ठीक है। अच्छा, तो ये बिल्ड कार्ड फाइनली फंक्शन जो है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंटेनर रिटर्न किया, ठीक है। और अब वापस आते हैं इस पे मीडिया क्वेरी पे, जो हमने साइज मंगवाया था ना यूज़र का। तो अब हमने क्या किया है कि जो हाइट है ना इसकी कंटेनर की, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, और हमने क्या किया हुआ है कि साइज डॉट हाइट है, सही है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हाइट है ना पूरी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.15 से, यानी कि इस पूरी स्क्रीन साइज की 15% है ना वो जगह ले लेगा। ये वाली जो हम चीज़ यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है नीचे जो भी आएगा, ठीक है। और विड्थ हमने किस तरह डाली है इसकी कंटेनर की, कि जो हमने साइज डॉट विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 45% से, यानी कि जो इस स्क्रीन का 45% है वो कौन ले लेगा, ये ले लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कार्ड, सही, कार्ड एक और विजिट होता है फ्लटर में, उसमें बस एक अच्छी चीज़ हमारे पास एडवांटेज ये आ जाता है कि एलिवेशन डाल सकता है। वो बस एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको अच्छा यूआई बनाने के लिए ना, एलिवेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलिवेशन हुई भी है, तो अच्छा यूआई बनाने के लिए हम कार्ड यूज़ कर सकते हैं एलिवेशन यूज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके अंदर आके हमने वही काम किया हुआ है कि क्या कहते हैं, एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट के फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हेडिंग, ठीक है। जो हेडिंग हमने नीचे से भेजी थी वो हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, फॉर एग्जांपल कंफर्म्ड है, न्यू कंफर्म्ड है, टोटल कंफर्म्ड है, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने स्टाइल किस तरह से लिया हुआ है, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल तो फॉन्ट साइज रखा हुआ है। कलर देखें, कलर हमने नीचे से पास किया हुआ है, कलर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू पास किया था तो ब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमने एक साइज बॉक्स, आपको याद हो मैंने बताया था साइज बॉक्स क्या होता है, साइज बॉक्स अगर आपको गैप देना हो, स्पेस देनी हो, ठीक है, आपको यहाँ पे हाइट ले लिया आपने 15, तो ये एक यहाँ पे 15 हाइट का गैप आ गया, ठीक है। बस साइज बॉक्स में मेन एडवांटेज ही होता है यूज़ करने का, ठीक है। फिर आप अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने डाली हुई हैं कॉलम के अंदर, तो इसलिए जो ना इस तरह से आ रहा है, पहले न्यू कन्फर्म्ड आया, फिर साइज बॉक्स आया, फिर आया आपके पास टेक्स्ट के अंदर, ये सारे चिल्ड्रन है जो कॉलम के ना, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, जो टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कर रहा है, नंबर, ठीक है। नंबर आपने क्या भेजा था, नंबर जैसे फॉर एग्जांपल आपने नीचे से भेजा था, क्या कहते हैं, ये जो कोविड डिस्प्ले आइटम डॉट टोटल कंफर्म डॉट न्यू डेथ्स डॉट डेथ्स, ये सारी जो इस क्लास के अंदर जो चीज़ें थी ना, ठीक है, ये यहाँ पे हमने, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, सही है। ग्लोबल हमने डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस रिटर्न होते हैं और हम जाते हैं इस पे, ठीक है। अब हमें कंट्री वाइज जो ना समरी दिखानी है, कंफर्म न्यू कंफर्म केसेस की, न्यू डेथ्स की और न्यू रिकवर्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ऑब्जर्व करें, सबसे पहला काम क्या हुआ है, सबसे पहला काम इसमें ये हुआ है कि हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो हम इसको विजिट करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे नीचे, डायरेक्ट यहाँ से शुरू जो हो रहा है, वो ये फाइल जो शुरू हो रही है वो कॉलम से हो रही है, यहाँ पे हम कॉलम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कॉलम रिटर्न कर रहे हैं नीचे तक, ठीक है। अच्छा, कॉलम के अंदर जो पहली चीज़ आपको दिखती है वो क्या है, हेडिंग रो, सही है। ये जो हमने लिया हुआ है कंट्री कंफर्म डेथ्स रिकवर्ड, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो ये हमने क्या किया हुआ है कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक रो के अंदर क्या, यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कराया हुआ है कंट्री, ठीक है, उसको बोल्ड किया हुआ है। फिर हमने साइज बॉक्स ले लिया एक, ठीक है, साइज बॉक्स से स्पेस आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा विड्थ में लिया हमने स्पेस, सही है। अब हमें इस तरह देनी थी स्पेस, तो हमने विड्थ में ले ली,
और उसको वही जो हमने मीडिया क्वेरी से साइज डॉट विड्थ इनटू 20% कर दिया 0.2 से 0.2 से, हाँ ठीक है। और उसके अंदर हमने कंफर्म डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। कंफर्म का कलर हमने ब्लू ही रखा ताकि ये यहाँ पे भी ब्लू था तो हमने नीचे भी ब्लू रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक डेथ्स वाली हेडिंग रख दी और एक रिकवर्ड वाली हेडिंग रख दी, वो सेम तरीके से बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर हम वापस आते हैं, फिर हमने एक क्या कहते हैं यहाँ पे दोबारा साइज बॉक्स लिया हुआ है हाइट में, ठीक है। ये आपको हाइट नजर आ रही होगी, 5 हाइट ली गई यहाँ पे, सही है, ताकि हेडिंग और जो है ये एक साथ मिल ना जाए बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर हमने यूज किया था एक्सपेंडेड। आपको एक्सपेंडेड अगर याद हो, एक्सपेंडेड क्या करता है, जितनी भी रिमेनिंग स्पेस होती है ना उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और नई चीज आपको दिख रही होगी, लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर अब क्या होता है कि लिस्ट व्यू बिल्डर का मेन मकसद ये होता है कि आपको वो तब यूज करना होता है जब आपको पता ना हो ना कि आपकी लेंथ कितनी है, ठीक है। आप अगर ये दोबारा रिस्पॉन्स देखें, ठीक है, तो आपको एक पता नहीं है कि इसमें कितना डेटा आ सकता है, कितना जो ना लेंथ आपको नोन नहीं है, आप ये समझ लें, ठीक है। तो बेहतर इस उसमें जो ना केस में बेहतर ये होता है कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर यूज कर लें। तो हम यहाँ से जो ना जो भी हमारे पास जो क्या कहते हैं जो हमारे पास लिस्ट आई थी कंट्रीज की, अच्छा लिस्ट कंट्रीज क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। अच्छा जैसे ये फंक्शन था ना, तो उसके अंदर एक तो हमने ग्लोबल मंगवाया था, ठीक है, एक ग्लोबल रिट्रीव किया था यहाँ से, ये रहा, इसको अगर हम देखें ये रहा ग्लोबल, और एक कंट्रीज था, तो उसको हमने क्या किया था, उसको एक कंट्रीज में डाल दिया था, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स था और एज ए लिस्ट डाला था ताकि वो लिस्ट की तरह जाके उसके अंदर सेव हो जाए। और हमने और इसके अंदर क्या था कि आपने देखा होगा कि ये कंट्रीज है, तो ये कंट्री बाय कंट्री आपका रिकॉर्ड यहाँ पे है, सही है, अफगानिस्तान, अल्बानिया, सही है, ये फॉर एग्जांपल सारी कंट्रीज है ना, जितनी भी कंट्रीज होंगी एंड तक वो क्या होंगी इसके अंदर जाके, फॉर ईच का मतलब ये होता है कि एक एक करके जाके वो जो ना ये लिस्ट हमने एक डिक्लेयर किए हुए ऊपर यहाँ पे समरी बाय कंट्री, ठीक है। इसके अंदर एक एक करके यहाँ पे तो एम्प्टी है, शुरू में तो जाहिर सा एम्प्टी होगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा इसके अंदर आपका डेटा आता रहेगा, ठीक है। कंट्री, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, सही है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट फिल हो जाएगी जब क्या कहते हैं सारी कंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी ना, तो ये वापस क्या करेगा, ग्लोबल समरी को हम रिटर्न करवा रहे थे, लेकिन अब क्या है कि जो ये समरी बाय कंट्री है ना, तो हमने ये क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ये पूरी फिल हो गई कंट्रीज से, ठीक है। और हम यहाँ पे एक एक्सेस करने का तरीका ये है कि समरी बाय हमने यहाँ पे आपने जैसे पता होगा कि एक यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें जो ना एक लिस्ट रिटर्न करवा रहा है कोविड की, जो ना कोविड डॉट डार्ट की, असल में है तो ये कोविड डॉट डार्ट का है ना सब, जैसे ये क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, इंट, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये कोविड डॉट डार्ट के ही हैं। हम यहाँ पे इसको यहाँ से इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं कोविड डॉट डार्ट के अंदर, ठीक है, ये जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमने क्या किया, ये जो लिस्ट हमने पूरी भरी थी ना आके, जो कंट्री की लिस्ट थी वो हमने क्या किया, यहाँ से इस फंक्शन से मंगवा सकते हैं। असल में एक और इसमें ये है कि ये स्टैटिक है, ठीक है। जो हमने जो है ना सारी चीज़ें स्टैटिक डिक्लेयर की हैं, ये जो फंक्शन है ना ये गेट समरी वाला, ये स्टैटिक है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, ये स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हम ये जो है ना कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर जो है ना। तो अब हम वापस आते हैं उसके अंदर कंट्री वाइज समरी के अंदर। तो हमने कंट्री वाइज समरी के अंदर ये आपको दिख रहा होगा गेट समरी बाय कंट्रीज के जो हम लिस्ट रिटर्न करवा रहे थे ना यहाँ पे, तो हमने ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ रहा है लिस्ट कोविड कंट्री समरी। अब यहाँ पे जो है ना हमने एक यहाँ पे लिस्ट एक एक्सेस कर ली और इसके अंदर स्टोर करवा दी। अब इसके अंदर याद रखिए कंट्री जैसे अफगानिस्तान है, सारे पाकिस्तान भी होगा और जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसको हमें हैंडल करना है, सही है। अब हैंडल किस तरह से हमने किया था, डिस्प्ले किस तरह से करवाया था, ये हेडिंग तो आपको बता दिया था। वो हमने जो डिस्प्ले कराया ना, अच्छा ये वो तो थी लिस्ट, ठीक है, जो जितनी भी कंट्रीज थी ना वो लिस्ट के अंदर पड़ी हुई थी। लिस्ट क्या होता है, एरे होता है, ठीक है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है।
तो हमने लिस्ट व्यू बिल्डर से क्या किया, उसका जो कंट्री समरी जो हमने लिस्ट बनाई हुई ना, उसकी लेंथ ली, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई अब जो साइज है वो ये है, ठीक है। जो लिस्ट व्यू बिल्डर से हमें साइज पता चल जाएगा उसकी जो लेंथ है, ठीक है। और हमने आइटम बिल्डर लिया हुआ, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है और ये आई है, ठीक है। आई मतलब जो आइट्रेशन जो चलेगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 जब तक जो इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इस लिस्ट का, इस एरे का जो इंडेक्स हमने पास किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये फंक्शन है डिस्प्ले आइटम का, ठीक है। ये आप दोबारा यहाँ पे देखें कि हमने किस तरह से किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, कंट्री के हमने जैसे यहाँ पे कंट्री कोड मंगवाया था, याद रखते हैं, इसको याद करें। यहाँ पे कंट्री कोड मंगवाया था, तो इसलिए यहाँ पे कंट्री कोड है, ठीक है। और फिर सेकंड चीज कहती यहाँ पे न्यू कंफर्म्ड केसेस थे, सही है, ये चीज है, ये न्यू कंफर्म्ड, न्यू डेथ, ठीक है, और रिकवर्ड। अच्छा, एक जैसे हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं ना, तो हमने एक चीज इसमें ये रखी हुई है कि हमने रिटर्न तो करवाया है, लेकिन एक चीज आप ये देखें अगर, कि कंट्री आइटम डॉट न्यू कंफर्म्ड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि अगर इनमें से तीनों अगर 0 आ रहा है ना आपके पास, जाहिर सी बात है कुछ कंट्रीज हैं, अब जाहिर सी बात है जितना भी ये एपीआई रिटर्न करे ना आपको, जो रिस्पॉन्स दे रही है, इसके अंदर कुछ आइलैंड भी होंगे, उसमें तो कोविड एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, कहीं कहीं ऐसी जगहें भी हैं। तो क्या होगा कि हम आपका जो है ना ये बहुत भर जाएगा, ये बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बस एक ये ऑप्शनल है, ये तो एक्स्ट्रा चीज की है, तो हमने यहाँ पे एक लगा दिया था कि अगर ये 0 आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले कुछ नहीं करवाना, एम्प्टी कंटेनर है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे डिस्प्ले कुछ नहीं होना, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि कुछ 0 0 वाला आपको जो है ना नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है, अगर वो ये 0 नहीं है, तो फिर ये पैडिंग पे आके हम कर सकते हैं डिस्प्ले है ना। अच्छा, पैडिंग असल में क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे हमने पैडिंग इस तरह से लिया है, कॉन्स्ट एड एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक, अच्छा वर्टिकल 4। अब पैडिंग मैं आपको यहाँ से एडजस्ट करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो आप देखिएगा फर्क क्या पड़ता है। ये जो स्पेस है ना, अभी आप इसको नोट करें, मैं वापस इसको कम कर देता हूँ। अच्छा, ये सर्कुलर इंडिकेटर है, अब ये डेटा वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस और क्या कहते हैं कम हो गए, तो ये स्पेस बिटवीन जो है ना ये दिख रहा था, मतलब ये बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप, ये बॉर्डर है और ये एलिमेंट्स हैं आपस में, तो इनके बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये कोड मिलेगा, तो इसको आप जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं सही तरह से, ठीक है। फिर हम वापस आते हैं, इसमें हमने साइज बॉक्स लिए हैं सारे, साइज बॉक्स से, ताकि इससे भी हम स्पेस दे सकें, मतलब एटलीस्ट ये वाली जो स्पेस है ना, विड्थ हम हर उसकी दे सकें, ठीक है। और हर उसके अंदर हमने डाला हुआ है टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, और एक इसको जो एक्सेस किया हुआ है कंट्री आइटम डॉट न्यू कन्फर्म्ड, सही, ये रहा न्यू कन्फर्म्ड है। फिर इसी के बराबर में एक ये रो चलती हुई आ रही है ना, तो इसके जो राइट साइड पे होगा न्यू डेथ्स हैं, ठीक है, फिर न्यू रिकवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से ये फर्स्ट आइट्रेशन है, सही है, ये याद रखिएगा फर्स्ट आइट्रेशन है। फिर ये सेकंड आइट्रेशन में जो यहाँ से भेजेगा लिस्ट व्यू बिल्डर आपका, फिर सेकंड जाके बिल्ड होगी, थर्ड होगी, और वो कंडीशन लगी रहेगी यहाँ पे। तो ये है अगर तीनों 0 हैं तो फिर क्या कहते हैं वो डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, वरना वो डिस्प्ले करता रहेगा। अच्छा, और कंट्री जो है हमने यहाँ पे जो आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा, कंट्री जो है, कंट्री कोड जो हमने इस तरह से डिस्प्ले किया है, ठीक है, रो के अंदर। तो बस एक ये है, हमने मेन इस तरह से अपनी एपीआई को जो है ना, हमने इसमें देखा कि हमने किस तरह से एडजस्ट किया, ठीक है। आगे अब जो है वजाद आपको कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप बताएं, डाउट्स वगैरह, ताकि वजाद आपको बता सकें और मैं भी आपको बता सकूं। G students, kindly ask your questions.
अच्छा, ये कोड जो है आपका वो गिटहब पे अपलोड कर देंगे और आपको उसकी लिंक दे देंगे, तो अगर आप चाहें तो उसको आप क्लोन करके अपने पास भी रन करके देख सकते हैं, कुछ एडिट्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। Right. Thank you. I guess there are no more further questions. आप GitHub का URL मुझे भी सेंड कर दीजिएगा ताकि वो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसको डाल दूंगा। Sure. ठीक है। थैंक यू अविनाश एंड वजाहत एंड ऑल द टीम। Thank you so much for having a wonderful workshop. Inshallah, we will join in next week. Okay. इंशाल्लाह। Okay. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम। Sir, I need to confirm हमें record video lecture में मिलेगी। Hello sir. ये वीडियो लिंक आपको ईमेल में मिल जाएगी आई गेस 2-3 दिन में।